حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں تشریف لائے تھے. محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ حج کے اوپر آپ نے ایک کتاب لکھی, اس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل 300 حج اور 700 عمرہ کیا تھا, اور پہلا حج جو پیدل گئے تھے وہ ہندوستان سے تشریف لیے تھے. یہ ملک ہمارے لیے بہت عظیم ملک ہے. ایک روایت اور ملتی ہے, درجے کے حدیث نہیں ہے, وہ تحقیق کی میں نے, مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے ہند کی طرف سے دین کی خوشبو آ رہی ہے. گرچہ کہ علامہ اقبال نے اس قول کو منسوخ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور انہوں نے منسوخ کر یوں فرمایا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ شعر جب علامہ اقبال نے فرمایا اس وقت ہندوستان ایک ہی تھا, اس کے بدنصیبت قسمتی سے تو ٹکڑے نہیں ہوئے تھے. میرے وطن سے مراد ہندوستان ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ ہندوستان کی بنائی ہوئی ہندی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, اور اسی سے استنباط فرماتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محترم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی تلوار بنا کر کعبے کی چابی جن کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس تلوار رکھوا دی ہے, تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب تمہاری ملاقات ہو تو یہ تلوار ان کو دے دینا کہ دجال کا جب خاتمہ ہو تو اس میں ہندوستان کی تلوار کا کریکٹر شامل رکھے. عزیزان ملت, یہ اس ملک سے ایک باہمی تعلق ہے ہمارا. اللہ نے اس ملک میں پیدا فرمایا, اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ ہم امبانی کا مقابلہ کریں, اڈانی کا مقابلہ کریں. ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ اس ملک میں ملاوٹ خوری ختم کریں, اس ملک سے جھوٹ کو ختم کریں, اس ملک سے رشوت خوری کو ختم کریں. اس ملک میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کا اپہرن کیا جا رہا ہے, ایسے ظالموں کی گردن کو پکڑیں. آج اس ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں غائب ہو چکی ہیں. آج اس ملک میں 5 لاکھ سے زیادہ عورتیں 2 وقت کی روٹی کے لیے کوٹھوں پہ اپنی عزت بیچ رہی ہے. اے مسلمانوں, تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اے مسلمانوں, میری قوم کے لوگوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ او چودھریوں, تمہاری بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھتی ہے. اسی محلے میں رہنے والی غریب بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے مسجدوں میں بھیک مانگ رہا ہے. کچھ ہو یا نہ ہو, اس بھیک مانگنے والے باپ کی بددعائیں ضرور پڑیں گی ان چودھریوں پر. اپنے پیسوں کو اڑاتے ہو. کتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو ناچنے والوں پر نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اڑاتے ہیں. اور آج کل تو یہ خرابی ناچنے والی مجلسوں سے اٹھ کر جلسے میں نعت پڑھنے والے نعت خانوں پر آ گیا ہے کہ بس اس کے پاؤں میں گھنگرو باندھنے کی دے رہے ہیں, وہ بھی کمر ہلا رہا اور لوگ نوٹ نکال رہے ہیں. فطرت وہی گندی ہے, صرف مقام بدل گیا ہے. کہاں ہم پہنچ رہے ہیں؟ انسانیت کہاں چلی گئی؟ ہم اس دیش میں مانوتا کی بات کرتے ہیں, ہم اس دیش میں سمراٹ بننے کی بات کرتے ہیں, اس دیش کو اپنا بنانے کی بات کرتے ہیں. اگر اپنا بنانے کی بات کرتے تو آپ کی آنکھوں میں حیا کہاں چلی گئی کہ جب ایک غریب آدمی کی بیوی سرکاری اسپتال میں دم توڑتی ہے اور اس غریب کے پاس پیسے کی کہ ایمبولینس لے. اے لوگوں, اے بھارتی سماج کے لوگوں, تمہاری نظروں کے سامنے وہ غریب انسان اپنے کاندھے پہ اپنی مری ہوئی بیوی کی لاش لے کر سڑک پر پیدل جا رہا ہے. شرم نہیں آتی ہمیں؟ وہ گاڑی والوں, وہ کار والوں, تمہاری غیرت نہیں آتی؟ یہ ایک مری ہوئی پتنی کی لاش نہیں ہے, یہ بھارت کے سماج کی لاش ہے جو مر گئی. مجھے نہیں معلوم اس کے لیے کون جواب دے اور کس سے پوچھو گی, لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مسلمانوں, اللہ تم سے اگر پوچھ لے کہ تم کہاں تھے. ہم تو بڑے آج کل تو اپنی دولت دکھانے کا ایک بڑا حرص و ہوس چل پڑا ہے. اپنے پاس رینج روور رکھنے کے لیے پوری جنتا کو گوبر میں لگا دیتے ہیں. تم گوبر کرو تو ہم رینج روور کریں. جب تک تم گوبر سے کھیلتے رہو گے ہمارے بچے رینج روور چلاتے رہیں گے. ہمارے دماغ میں یہ باتیں کب آئے گی؟ ہم کس کے لیے ہیں؟ کون سے انسانیت کی بات کر رہے ہو؟ ایک ذات ایک دھرم چھوڑ دو, میں سارے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. دلی میں اسکول وین پہ
6 साल की बुढ़िया बेटी जा रही है, पार्वती बेटी जा रही है, जिसकी भी बेटी हो, लेकिन बेटी है, समाज की बेटी है, देश की बेटी है, इंसानियत की बेटी है। अचानक ब्रेक ली जाती है, बच्ची नीचे गिरती है, डिवाइडर से टकरा कर सर फट जाता है। वो प्यारी सी बेटी भारत की चीखती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। 2500 लोग खड़े थे, कोई अस्पताल नहीं ले गया, लेकिन हर एक ने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो जरूर बनाया कि एक मासूम बच्ची तड़प तड़प कर मरती कैसे है। हमारा आत्मा इतना मर चुका, हमारा जमीन इतना मर चुका, हम इतने नीचे गिर गए। हिंदू मुसलमान बाद में बनना, पहले इंसान तो बन जाओ, पहले कहलाओ तो कि तुम इंसान हो। जमीन इतना मुर्दा हो चुका है कि आज इंसान कहलाने के लायक भी हम नहीं रहे। वो इंसान आज ये फ्रॉड कौन कर रहा है, डिजिटल अरेस्ट कौन कर रहा है, अकाउंट को लूट कौन रहा है, ओटीपी चुरा कौन रहा है, कॉल सेंटर के नाम पर रिटायर हुए बेचारे कपल जोड़े को लूट कौन रहा है। ये कोई जंगल के शेर कर रहे हैं, ये कोई जंगल के भालू कर रहे हैं, ये कोई जंगल के बंदर कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सारे इंसान कर रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जाहिल नहीं, हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे क्रिमिनल कर रहे हैं। कितने बदनसीब माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा डाकू बना रहे हैं, एजुकेटेड डकैत, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। क्यों? अब हमारे समाज में इंसानियत का दर्श देना हमने बंद कर दिया, दर्श देना बंद कर दिया। अब तो फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, सबको ये फिक्र है कि मेरे फॉलोवर्स कितने हैं। अब अगर मुसलमान उलमा भी उसी लाइन पे आ जाए कि मेरे फॉलोवर्स कितने हैं, तो हम इसमें दुनिया में नहीं आए। हमें तो ये देखना है अल्लाह को मानकर अपने दिल से इंसानियत की मोहब्बत करने वाले कितने हैं। बात अगर फॉलोवर्स की करोगे तो नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो ट्विटर, दुनिया की कोई सोशल नेटवर्क, डिजिटल हैंडल कुछ नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा फॉलोवर्स अगर इस दुनिया में किसी का रहा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है। और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने फॉलोवर्स कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारे दिल में इसका दर्द कब आएगा कि इंसानियत के तई उड़ीसा के काला हांडी में आदिवासी की एक बेटी 7 दिन तक चीखती है कि मुझे भाग दो, भाग दो, भाग दो, और भूख से तड़प कर मर जाती है। ऐ मुसलमानों, देश पर देश चढ़ाने वालों, क़यामत के दिन तुम खुदा को क्या जवाब दोगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में शाम होने से पहले एक इलाके से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, सर से खून बह रहा है, घुटने फुटे हुए हैं, कोहनियां जख्मी हैं, और चमड़े के बैग में पानी 20-25 लीटर जिसमें आ जाया करता है, वो पीठ पर लेकर जा रहा है। कभी गिरता है, कभी उठता है, रो रहा है, कभी आंसू पोंछता है, कभी खून पोंछता है। मगर हाय रे बेबसी, हाय रे अजीब हाल, बेकसी, कि उसी हाल में पानी लेकर जा रहा है, फिर गिरता है, फिर उठता है और आसमान की तरफ देखता है। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ गई। आप दौड़े हुए उसके पास गए, कहा बाबा आप कौन हो? चाचा आप कहाँ के रहने वाले हो? इस बेबसी, इस उम्र में, इस बुढ़ापे में इतनी बेबसी तुम्हारी क्यों है? इतनी बेकसी के साथ तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो वो बूढ़ा रोने लगा और कहा बेटा तू कौन है, कहां से आया? यहाँ तो कोई हमदर्दी से तो बोल भी नहीं बोलता और तू कैसी बातें कर रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा मेरा नाम मोहम्मद है, मुझे अपनी बात तो बताइए कि आप पर क्या टूट पड़ी है? वो बूढ़ा कहता है बेटा मैं जिसका गुलाम हूँ, यानी जो मेरा मालिक है, मैं उसका नौकर हूँ, जरा सख्त दिल का है, जरा मिजाज चढ़ा हुआ इंसान है। उसने शर्त रखी है कि सूरज डूबने से पहले अगर तुमने मेरे खजूर के हर पेड़ पे पानी न दे दिया तो आज रात तुम्हें छुट्टी न मिलेगी। ये बड़ी सख्त सजा है कि अगर आज रात में घर न गया तो मेरी बूढ़ी बीवी रोते रोते रात गुजार देगी और वो भूखी रह जाएगी। तो मेरा मालिक
मुझे घोड़ों के अस्तबल में डाल देगा, जहां पूरी रात घोड़े लात मारेंगे और मुझ पर पेशाब करेंगे। इस खौफ से बेटा मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आज सूरज न डूबे, जब तक कि मैं अपना काम न कर लूँ। किसी वजह से मैं गिर गया हूँ, मेरे सर फट गए हैं, मेरे घुटने फूट गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका आंसू पोंछा। फरमाया चाचा आप यहीं बैठिए और ये बैग ये पानी की चमड़े की सुराही मुझे दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते ही और पानी भरना शुरू करते हैं और यहूदी के बाग के तमाम पेड़ों में पानी डालकर आते हैं और कहते हैं चचा मैंने आपकी ड्यूटी मुकम्मल कर दी है, कल फिर आइएगा, इसी जगह पर आपको मोहम्मद मिल जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप घर चले जाइएगा। हम लोग सड़क से गुजरते हैं, हम लोग गाड़ी लेकर गुजरते हैं। और मुस्लिम नौजवानों जरा तुम्हारे अंदर गुड बिहेवियर कब आएगी? लोगों जब गाड़ी लेकर गुजरते हो और कोई माजूर रोड क्रॉस कर रहा है, तुम हारन बजाते हो, तुम्हारे दिल को चोट नहीं लगती कि जरा सी रुक जाए, इस बुजुर्ग को गुजरने दे, इस माता जी को गुजरने दे, जरा सी निकलने दे। और मुसलमानों अपने बेटों को गाड़ी दिलाओ, मगर दो बातों का ख्याल रखना, एक तो ये कि उसे लाइसेंस मिल जाए और दूसरी ये कि तरबियत हो के बेटा जब सड़क पर चलना तो इस तरह चलना कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए कि शरीफ बाप का कोई नेक बेटा जा रहा है, कहीं कोई ये न कह दे किसी हरामखोर बाप की नालायक औलाद जा रही है। कुछ तो कल्चर हमारे अंदर है, कानून का एहतराम, सड़कों की भी हक है हम पे। अगर लाल बत्ती जल रही है तो रुकना आप पर जरूरी है। अगर आप नहीं रुके और खुदा न करे कोई हादसा पेश आ गया तो अल्लाह के कातिल और मुजरिम करार दिए जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत मुस्लिमा की जो तरबियत फरमाई है, वो तरबियत इसलिए फरमाई ताकि ये उम्मत इमाम बनाई जाएगी। लोगों अगर तुम्हारे अंदर अच्छी बिहेवियर और अच्छे कैरेक्टर के तुम मालिक रहे तो इस मुल्क के तुम इमाम बनाए जाओगे, और अगर तुमने इस रास्ते को छोड़ दिया तो गुलाम हो, मजीद बद से बदतर हो सकते हो। अल्लाह न करे कैसा हो। हुजूर नबी करीम सारा मजमा कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गुनाहों के बारे में पूछा गया, मैं उसकी वजाहत में नहीं जा रहा हूं। पूछा गया कि एक मुसलमान ये गुनाह कर सकता है, ये गुनाह कर सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान है कर सकता है। एक आखिरी और तीसरे गुनाह के बारे में पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एक मुसलमान झूठ बोल सकता है? कितनी सिंपल सी चीज है ना? ये तो आम मुसलमान तो छोड़ी, माशाल्लाह क्या कहने, है ना? तो क्या कहने से क्या एक मुसलमान झूठ बोल सकता है? किसके बारे में पूछा गया? शेख सैयद मंसूरी अंसारी के बारे में नहीं, किसके बारे में पूछा गया भाई? जी आपने अगर समझा तो बता दीजिए। मुसलमान जो खुद को मुसलमान समझता है वही सुने। फरमाया एक मुसलमान क्या झूठ बोल सकता है? बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुबारक सुर्ख हो गया और आपने शिद्दत के साथ फरमाया जो मेरा होगा, जो मुसलमान होगा वो झूठा नहीं, वो झूठा नहीं होगा, वो झूठ नहीं बोल सकता। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा मौजूद है, हमारे बड़े उलमा मौजूद है, मैं माफी मांगता हुआ एक बार नहीं 100 बार आपसे माफी मांगकर एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान में तुम मुझे एक ऐसा मजहबी इदारा बता दो जहां झूठ ना हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बता दो, एक ऐसी अंजुमन बता दो कि जहां झूठ न दाखिल हो गई हो। ये हमारी बदनसीबी है नौजुबान। हम बीमारियों से जितने सख्त लड़ते हैं उससे ज्यादा माशरे की खराबियों से हमें लड़ने की जरूरत है। और आप हमारे मुखातब नहीं है, मैं खुद मुखातब हूं। इस्लाम की गुफ्तगू करने का मतलब ये नहीं कि आवाम के अंदर सारी खराबियां हैं और हम हज़रत जिब्रील के भतीजे हैं। हमें अपने